So today we will continue the topic convergence in measure, and now we will do the theorem Rees theorem. So what the theorem states, let Fn be a sequence of measurable functions which converges in measure to f on E. ठीक है, एज इट इज ये Fn जो है वो f को कन्वर्ट कर रहा है मेजर में. तो डेफिनेशन हमें पता ही है क्या डेफिनेशन है. Then what we want to prove, there exists a subsequence f and k that converges to f almost everywhere on E. तो इसका मतलब ये है कि जो एफ एन के है वो क्या कर रहा है, एफ को कन्वर्ज कर रहा है. इट मीन्स अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो उसका सीक्वेंस भी एफ को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. इट मीन्स हमें अब बनाना है एक सब सीक्वेंस. So first of all, let epsilon and delta n be two sequences of positive real numbers such that epsilon n is tending to 0 and summation of delta n is less than infinity. So why we have chosen the ultimately ये हमें कहीं ना कहीं आगे जाके use होंगे. Now, by definition, Fn converges to Fn measure. So, we will put the definition. So, we have just put the definition. Now, by using this result, we form an increasing sequence nk of positive integers. अब ये result hold हो रहा है for all n greater than or equal to n naught. हम क्या करते जाएंगे, हर एप्सिलॉन हर डेल्टा के लिए एक n नॉट चूज हो रहा है, तो हम एप्सिलॉन 1 चूज करेंगे, डेल्टा 1 चूज करेंगे, तो n1 चूज करेंगे. तो सेम डेफिनेशन जहां पे n चल रहा है वहां आ जाएगा fn1 और यहाँ पे डेल्टा 1 आ जाएगा और n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n2. फिर हम n2 चूज करेंगे सेम एग्जैक्टली, तो यहाँ बन जाएगा fn2 दैट इज लेस देन, ये वाला जो सेट है वो डेल्टा 2 से छोटा होगा फॉर ऑल n2 ग्रेटर देन और इक्वल टू n1. तो इस तरह से चलते जाएंगे nk fnk एंड सेम हियर. सो हियर we shall now prove that. अब हमने एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स बना लिए fn1 fn2 सोन अप टू fnk डैश डैश. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये f को कन्वर्ज होना चाहिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इसका मतलब इन सबके लिए एक एप्सिलॉन और डेल्टा काम करना चाहिए. So first of all, we will make a set AK. It is a set of all those points for which fni and fx absolute difference is greater than or equal to epsilon I, k belongs to n, and its union I running from 1k to infinity. So now and और इन सबकी जो इंटरसेक्शन है, इन सारे सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो हमने क्या एज्यूम कर ली, ए एज्यूम कर ली. Then clearly AK is a monotonically decreasing sequence of measurable sets. अब ये monotonically क्यों बना, क्योंकि अगर मैं A1 लेती हूँ तो आया यूनियन I रनिंग फ्रॉम 1 टू infinity, ये एक सेट बनेगा. ठीक है. When I will take A2, then union I running from 2 to infinity. When I will take A3, this is union I running from 3 to infinity. अब इसमें भी पुट कर सकते हैं. तो ये शुरू हो रहा है 1 to infinity, ये 2 to infinity. इसका मतलब A1 is a superset of A2 is a superset of A3 is a superset of AK, right? So therefore it is a monotonically decreasing sequence. और हर set क्या है, definitely it is measurable sets. Now measure of A, that is measure of the intersection, we know the limiting form, so we will write here. So but measure of AK, measure of AK is less than summation I running from 1 to infinity delta I. So why we are writing that कि measure of जो AK है that is less than summation I running from 1 to infinity delta I, that is tending to 0 as K tends to infinity. अब AK जो है, अब जो सारे AKs हैं, ठीक है, and when you will put here A1, let's put, so this is union I running from 1 to infinity, x belongs to A, यहाँ आएगा fn1x minus f of x, its mod is greater than or equal to epsilon 1, right? और इसका अगर हम मेजर निकाल ले, when I will want to find the measure of A1, जब इसका मेजर निकालेंगे तो ये समेशन में बदल जाएगा, ये किसमें बदल जाएगा, समेशन में. और मेजर जो है वो किससे छोटा आ रहा है बेटा, वो डेल्टा से छोटा आ रहा है. किससे छोटा आ रहा है, सारे डेल्टा से, डेल्टा 1 डेल्टा 2. सो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन हियर कि मेजर ऑफ AK जो है यूनियन का बन गया समेशन. सो हर एक जो है वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 से छोटा है, दैट इज समेशन ऑफ K running from 1 I running from K to infinity delta I. और ऊपर हम ले चुके हैं कि ये जो सम है दैट इज टेंडिंग टू 0. So therefore the limiting value of measure of AK is 0. It implies measure of A is 0.
सो मेजर ऑफ ए जीरो हो गया. मेजर ऑफ ए जीरो का मतलब ये हुआ कि उन सेट ऑफ पॉइंट, वो सेट ऑफ पॉइंट जहां पे एफ एन के एफ को कन्वर्ज नहीं कर रहा, उस सेट का मेजर जीरो है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट एवरीवेयर पे पहुंचना है. अब हम प्रूव करेंगे कि एफ एन के जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ को कन्वर्ज कर रहा है ऑन ये टोटल ई है. इन सेट ऑफ यहाँ पे इस सेट का मेजर क्या आ गया, जीरो. ठीक है, और बाकी क्या बचा, ई माइनस है. इसका मतलब एफ एन के जो है इस पे एफ एन के जो है वो एफ को कन्वर्ट कर रहा है. सो लेट y बिलोंग्स टू ई माइनस है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया. सो अब y a में नहीं आया, y a में नहीं आया मतलब इंटरसेक्शन ए के में नहीं आया. इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब कम से कम एक ऐसा है जिसमें ए के में नहीं आया. मान लो किस में नहीं है, ए के नॉट में नहीं है. ठीक है, सो अगर ए के नॉट में नहीं है तो यूनियन कहाँ से शुरू होगा, आई रनिंग फ्रॉम के नॉट टू इंफिनिटी. तो इट इम्प्लाइज y यूनियन में नहीं आ रहा, इसका मतलब किसी भी में नहीं है. इसका मतलब y जो है इस सेट के अंदर नहीं है. फॉर ऑल कहाँ से शुरू हो रहा था, के, फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू के नॉट. सो इट इम्प्लाइज y उस सेट में नहीं आ रहा है जहां पे फंक्शनल की वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन के है. तो इसका मतलब y कहाँ पे आ रहा है, जहां इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन के है. तो एप्सिलॉन के इज टेंडिंग टू जीरो. इट इम्प्लाइज लिमिट, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एन के और एफ ऑफ वाई इट्स का मॉड टेंडिंग टू जीरो as k tends to infinity. It implies limit k tends to infinity, f n k is equal to f of y for all y belongs to e minus a. तो जहां पे एफ एन के एफ को टेंड नहीं कर रहा उस सेट का मेजर क्या है, जीरो है. और बाकी जगह पे ये टेंड कर रहा है. सो वी विल राइट एफ एन के टेंडिंग टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन. So that's all about the Rees theorem.